Now in this video I'll discuss the non-cooperation movement. Reasons for the launch of the non-cooperation movement. First of all, we discuss why the non-cooperation movement launched. First reason is the Montague-Chelmsford reforms. Montague-Chelmsford reforms we have studied in the previous video. उसमें the Government of India Act 1919 ये launch हुआ था. This act of 1919 did not introduce the federal system of government in the country. According to this act, the central government remained responsible to the British Parliament, है ना. तो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी भी रिस्पॉन्सिबल है ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए. The provincial subjects were divided into two parts: transferred, reserve subjects. Reserve subjects include law and order, land revenue, irrigation, which would be controlled by the governor and his executive council, while transferred subjects include health, agriculture, etc., which would be under the control of the Indian ministers responsible to the provincial legislature. ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. Thus the Act of 1919 introduced diarchy और dual government. तो अभी भी एक रिस्पॉन्सिबल है ब्रिटिश पार्लियामेंट को, एक रिस्पॉन्सिबल है, एक डिपार्टमेंट गवर्नर कंट्रोल कर रहा है और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल वही जगह ट्रांसफर सब्जेक्ट्स प्रोविंशियल लेजिस्लेचर विल टेक ओवर. तो इस तरीके से ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंटशिप यहाँ पे है, ड्यूअल गवर्नमेंट है. एंड द माइनर डिपार्टमेंट्स वो भी कंट्रोल्ड कर रहे हैं, छोटे डिपार्टमेंट्स हैं वो इंडियन मिनिस्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं. तो आफ्टर ऑल अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट फुल्ली है. नो रियल पावर वॉज गिवन टू द इंडियंस. हेंस द कांग्रेस डिस्क्राइब्ड दिस एक्ट एज unsatisfactory and disappointing. That's why they introduced non-cooperation movement. That is, it means that Indians are not ready to cooperate with British government anyhow. The Rowlatt Act 1919, Justice Rowlatt introduced two bills known as Black Bills. Black Bills क्या है? On the basis of these bills, the police could search any place and arrest any person without any warrant. So इससे लोग गुस्सा गए. Okay, the person would be kept in police custody without any trial. These bills were described as no dalil, no wakil, no appeal. It's not now, it's no. No dalil, no wakil, no appeal. कोई दलील नहीं होगी, कोई लॉयर भी आपका नहीं बनेगा और कोई आपकी तरफ से लड़ेगा भी नहीं. नो अपील. The Indian leaders registered vehement protest against this tyrannical act. और इसीलिए इंडियन लीडर्स ने इस रॉलैट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया. बट द एक्ट वॉज पास्ड ऑन 18th March 1919. द एक्चुअल पर्पस ऑफ दिस एक्ट वॉज टू कर्ब द ग्रोइंग नेशनलिज्म इन इंडिया. सत्याग्रह. Gandhiji condemned the Rowlatt Act and gave a call for direct agitation against this reactionary measure of the government. तो जो गवर्नमेंट ने ये रॉलैट एक्ट अनाउंस किया, रॉलैट एक्ट के अगेंस्ट गांधी जी ने तुरंत ही डायरेक्ट एगिटेशन स्टेप रखा. द सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलैट एक्ट began on 6th April 1919. गांधी जी told the people to fast, pray and hold public meetings. गांधी जी ने लोगों से कहा कि फास्ट रखें, प्रे करें और पब्लिक मीटिंग्स करें अलग अलग जगह अगेंस्ट द रॉलैट एक्ट. हड़ताल वॉज ऑब्जर्व थ्रू आउट इंडिया. पूरे इंडिया में हड़ताल लग गई क्योंकि वो कोऑपरेट नहीं करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ. गांधी जी टोल्ड पीपल to remain non-violent, but on the day of Hartal, people in many places like Delhi, Punjab and Gujarat broke the Gandhian principle of non-violence. गांधी जी ने बोला था कि शांत रहने के लिए वायलेंस नहीं करना है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है. बट कई जगह दिल्ली, पंजाब, गुजरात में ये गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस ब्रोक हो गया. रॉलैट सत्याग्रह was the first all India strike against the British rule. ये जो रॉलैट सत्याग्रह हुआ है ये सबसे पहला ऑल इंडिया स्ट्राइक था जो ब्रिटिश के रूल के अगेंस्ट पहली बार पूरे इंडिया में स्ट्राइक लगी थी. नेक्स्ट इज जलियांवाला बाग ट्रेजेडी. In Amritsar on 10th April 1919, two prominent leaders, namely Dr. Satpal and Dr. Saifuddin Kichlu, were arrested. इन दोनों को अरेस्ट किया गया एंड डिपोर्टेड फ्रॉम अमृतसर से हटाया गया.
The agitated mob marched towards the residence of the deputy commissioner to protest against the arrest of these leaders. ठीक है, the police started firing at the mob and the angry mob attacked the town hall and the local post office. तो मॉब भी गुस्सा आ गई थी, मतलब पब्लिक भी गुस्सा आ गई थी और टाउन हॉल में उन्होंने अटैक किया, लोकल पोस्ट ऑफिस में भी अटैक किया. टेलीग्राफ वायर्स वर कट एंड यूरोपियन इंक्लूडिंग वुमेन वर अटैक्ड. यूरोपियन विमेन के ऊपर भी अटैक हुआ. द आर्मी वॉज कॉल्ड इन एंड द सिटी वॉज हैंडेड ओवर टू जनरल डायर हु प्रोहिबिटेड पब्लिक मीटिंग, जिन्होंने एकदम पब्लिक मीटिंग्स को स्टॉप करा दिया था. ऑन 13 अप्रैल बैसाखी डे अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल, बैसाखी डे वाले दिन बहुत सारे लोग गैदर्ड होते हैं जलियांवाला बाग में टू अटेंड अ पब्लिक मीटिंग. इट वॉज एन इनक्लोज ग्राउंड, ग्राउंड पूरी तरीके से क्लोज्ड है, सिर्फ एक ही इंट्रेंस है. द ग्राउंड वॉज हेम्ड इन फ्रॉम ऑल साइड्स बाय हाई वॉल्स, और ग्राउंड में साइड से पूरा हाई वॉल्स, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, विच लेफ्ट लिटिल चांस फॉर, जिससे बचना नामुमकिन है. जनरल डायर विदाउट इश्यूइंग वार्निंग टू द अनआर्म्ड क्राउड टोल्ड हिज ट्रूप्स टू फायर अपॉन द मॉब. जनरल डायर ने बिना वार्न किए इस क्राउड को, बिना वार्न किए अपने ट्रूप्स को बोल दिया कि इन पूरी पब्लिक के ऊपर फायरिंग कर दो. द शूटिंग कंटिन्यूड फॉर 10 मिनट्स, और ये शूटिंग 10 मिनट्स तक चलती रही जब तक पुलिस, अंटिल द पुलिस रैन आउट ऑफ एमिनेशन, जब तक पुलिस की बुलेट्स ख़त्म नहीं हो गई. द गवर्नमेंट एस्टिमेट वॉज 379 डेड, 379 people were dead. The brutality at Jallianwala Bagh stunned the entire nation. जलियांवाला बाग ट्रेजेडी में ये जो ट्रेजेडी होती है ये इतनी गलत, इतनी गंदी तरीके से होती है कि पूरे नेशन, पूरा इंडिया स्टंट रह जाता है. कर्फ्यू लग जाता है. पंजाब वॉज प्लेस्ड अंडर मार्शल लॉ. The people of Amritsar were forced into indignities like crawling on their beliefs before the Europeans. Stripping and whipping of the people on the open street. लोग रो रहे थे खुले, मतलब बाहर रोड पे. रविन्द्रनाथ टैगोर in protest gave up his title of knighthood. According to Dr. Bipin Chandra, the incident in Punjab exposed the ugly and horrible character of the British government. डॉक्टर बिपिन चंद्र ने ये कहा कि ये जो इंसिडेंट हुआ पंजाब में, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी में जो इंसिडेंट हुआ है, इससे हमें ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे भयानक रूप, अगली रूप, सबसे बुरा रूप दिखा है. नेक्स्ट इज खिलाफत मूवमेंट. टर्की इंटर्ड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, एंड टर्की वॉज अगेंस्ट द ब्रिटेन. जर्मनी ऑल्सो अगेंस्ट द ब्रिटेन अंडर एलिस. The Sultan of Turkey was the Caliph और खलीफा, the religious head of the entire Muslim. जो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के हेड होते हैं वो कैलिफ होते हैं, जो सुल्तान थे टर्की के. एंड द इंडियन मुस्लिम्स हैड सिंपैथी फॉर द कैलिफ, और इंडियन मुस्लिम्स को सिंपैथी थी कैलिफ के लिए. द ट्रीटी ऑफ सर्व्स विच वॉज कंक्लूडेड एट द एंड ऑफ द वॉर. वॉर के एंड में ट्रीटी ऑफ सर्व्स हुई थी, जो ट्रीटी ऑफ सर्व्स ने समझौता कराया था कई कंट्रीज़ के बीच में. took away much of the prestige of the Sultan. The Asiatic portion, टर्किश एम्पायर का जो एशियाटिक पोर्शन था वो फ्रांस और इंग्लैंड के कंट्रोल में हो गया. इवन इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ टर्की सुल्तान वॉज नॉट अलाउड टू एक्सरसाइज रियल कंट्रोल. इवन जो रियल पोर्शन था टर्की का, जो बचा कुचा पोर्शन था टर्की का, सुल्तान उसमें अलाउ नहीं थे कि वो कंट्रोल कर पाएँ. मुस्लिम्स इन इंडिया वर अपसेट, और इसी वजह से इंडियन मुस्लिम्स भी बहुत अपसेट हुए एंड स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट टू रिवाइव द लॉस्ट ग्लोरी ऑफ कैलिफ. जो कैलिफ का खोया है वो वापस मिले, उसके लिए खिलाफत मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट हो गया अंडर द लीडरशिप ऑफ मौलाना मोहम्मद अली एंड मौलाना शौकत अली. गांधी जी सॉ अ रेयर चांस, और तभी गांधी जी को एक अच्छा चांस मिलता है हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए, एंड ही डिसाइडेड टू एस्पाउस द कॉज ऑफ द खिलाफत. और तभी उन्होंने खिलाफत के जो कॉज को समझा कि ये खिलाफत मूवमेंट क्यों हो रहा है. He advised the खिलाफत कमिटी to adopt a policy of non-cooperation, और तभी उन्होंने खिलाफत कमेटी को अडॉप्ट किया, बताया कि एक पॉलिसी अप्लाई करें नॉन कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के साथ किसी भी तरीके का कोऑपरेशन नहीं करना है. ही वॉज प्रिपेयर्ड टू स्टार्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ द खिलाफत डिमांड्स.
द प्रोग्राम ऑफ द खिलाफत मूवमेंट इंक्लूडिंग रेजिग्नेशन फ्रॉम पुलिस। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है तो गवर्नमेंट के साथ हमें किसी भी तरीके का कॉपरेशन नहीं करना है एट एनी कॉस्ट। तो जो जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है वो सब रिज़ाइन करना पड़ेगा, मतलब रेजिग्नेशन फ्रॉम पुलिस, फ्रॉम आर्मी, स्टॉप पेमेंट ऑफ लैंड टैक्स, सरेंडर ऑफ ऑनरीज ऑफिसर्स। In September 1920, special Calcutta session of the National Congress approved Gandhiji's proposal of non-cooperation movement and supported खिलाफत cause। और सितंबर 1920 में एक स्पेशल कैलकटा सेशन होता है नेशनल कांग्रेस का, वहाँ पे अप्रूव करा जाता है गांधी जी के इस नॉन कोऑपरेशन प्रपोजल को कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, और खिलाफत कॉज को भी सपोर्ट किया जाता है कि बिल्कुल उनका जो खिलाफत मूवमेंट है वो जायज़ है। Importance of खिलाफत मूवमेंट। आफ्टर 1857 नो सच यूनाइटेड मूवमेंट ऑफ द हिंदू मुस्लिम्स हैड बीन विटनेस्ड। 1857 के बाद हिंदू मुस्लिम का यूनिटी का कोई ऐसा एक साथ मूवमेंट नहीं देखा गया, बिकॉज सो लॉन्ग मुस्लिम कम्युनिटी हैड रिमेन्ड लॉयल टू द ब्रिटिश, बट द मूवमेंट बिकेम यूजलेस आफ्टर मुस्तफ़ा केमाल पाशा एबॉलिश्ड द पोस्ट ऑफ कैलिफ। ही ट्राइड टू डेवलप टर्की ऑन सेक्युलर लाइन्स। लेकिन ये मूवमेंट बहुत बेकार गया, इसलिए क्योंकि मुस्तफ़ा केमाल पाशा ने कैलिफ की पोस्ट को मना कर दिया और टर्की को वो सेक्युलर लाइन्स के हिसाब से डेवलप करेंगे। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नाउ व्हाट वाज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एज द नेम सजेस्ट, मीन्स इट्स अ वे ऑफ प्रोटेस्ट। वन डज नॉट कोऑपरेट विद द ईविल डूअर्स। गलत के साथ सही बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करेगा, मतलब कोई भी इंडियन सिटीजन कोऑपरेट नहीं करेगा ईविल डूअर्स के साथ जो गलत कर रहे हैं। ईविल डूअर यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट है। गांधी जी टोल्ड हिज फॉलोअर्स नॉट टू हेल्प द फॉरेन गवर्नमेंट टू रूल ओवर देम। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ऑब्वियसली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो क्यों रहा है? फॉर स्वराज। पनिशिंग दोज गिल्टी ऑफ एट्रोसिटीज़ इन पंजाब। पंजाब में जो जलियांवाला बाग ट्रेजिडी में जिन लोगों ने गलत किया है, मॉब में फायरिंग करी है, उनको पनिशमेंट मिले। रेमेडिंग द खिलाफत रॉन्ग्स, जो खिलाफत मूवमेंट में जो गलत हुआ है उनके लिए भी। एंड रिस्टोरिंग द ओल्ड स्टेटस ऑफ सुल्तान ऑफ द टर्की, और टर्की के सुल्तान को वो वापस वो सारी चीज़ें ग्लोरी मिल जाए। नेक्स्ट इज प्रोग्राम ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला कैसे? Non-cooperation movement had two types of program, namely negative also and positive, both the impacts. नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द प्रोग्राम ये था कि गवर्नमेंट स्कूल्स बॉयकॉट करना है, बॉयकॉट ऑफ द लॉ कोर्ट्स, बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और सरेंडर करने हैं वो सारे टाइटल्स एंड ऑनरी पोस्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिए हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की दी हुई चीज़, चाहे पोस्ट हो चाहे गुड्स हो, सब कुछ बॉयकॉट करना है। बॉयकॉट मतलब नहीं एक्सेप्ट करना है, नॉट टू यूज़। पॉजिटिव एस्पेक्ट ये था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो गई इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। प्रमोशन ऑफ स्वदेशी गुड्स, एक जगह आप बॉयकॉट कर रहे हो ब्रिटिश गुड्स का, तो इट मीन्स कि प्रमोशन हो रहा है स्वदेशी गुड्स का, स्वदेशी गुड्स यूज़ होंगे साइमल्टेनियसली। रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हट गया। एंड लास्ट द बैनिंग ऑफ इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स, इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स में बैन लग गया। द कोर्स ऑफ द मूवमेंट। The people of India spontaneously joined this movement. तुरंत लोग ज्वाइन हो रहे थे एंड रिस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ गांधी जी, और गांधी जी के इस बुलावे पे, इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे रिस्पॉन्स दे रहे थे। एमिनेंट लॉयर्स लाइक चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू एंड मेनी अदर गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिस। इनफैक्ट इतना ही नहीं, जो लॉयर्स थे उन्होंने भी अपना काम छोड़ दिया। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू एंड टी प्रकाशन लेफ्ट देयर लुक्रेटिव प्रोफेशन, इनकी अच्छी खासी जॉब थी, इन्होंने भी अपनी प्रोफेशन को छोड़ दिया, रिज़ाइन कर दिया एंड ज्वाइन द मूवमेंट, और इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को तुरंत ज्वाइन कर लेते हैं। एज मैनी एज 20 लाख चरखास वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल थ्रू आउट द कंट्री। पूरी कंट्री में 20 लाख चरखा डिस्ट्रीब्यूट किए गए। डॉक्टर बिपिन चंद्र रिमार्क कि खादी हमारा सिंबल है फ्रीडम का। आई वुड आस्क यू टू कम इन खादी फॉर खादी लिंक्स यू विद द फॉलन एंड द ड्राउन ट्रॉडर्ड। मोहम्मद करमचंद गांधी का ये कहना है कि हम खादी के लिए आई वुड आस्क यू टू कम इन खादी, खादी में आप पहन के आइए, खादी के लिए आइए, खादी लोगों से मिलिए और जो डाउन ट्रॉडन है उनको ऊंचा करिए।
About 90,000 students left government schools and colleges. 90,000 students ने government college schools को छोड़ दिया by January 1921. Institutions like Jamia Millia Islamia, Bengal National University, काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, ये सब established हो गए under the teachers डॉक्टर जाकिर हुसैन, आचार्य नरेंद्र देव, लाला लाजपत राय. Nearly 800 national schools had sprung up. ख़त्म हो गए schools. The Congress boycotted the elections to the legislature. Legislature जो election होता था उस वहाँ पे भी participation नहीं करती है कांग्रेस. Next, Rabindranath Tagore renounced the knighthood. Rabindranath Tagore renounced the knighthood conferred on him by the British. ठीक है. गांधी जी returned the medals. गांधी जी medals awards उसके उनके जो काम पे उनको साउथ अफ्रीका में जो उनको मेडल्स मिले हैं वो सब वापस कर देते हैं कि ले लो अपने सारे मेडल्स नहीं चाहिए, मतलब इनका दिया हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट का दिया हुआ. द तिलक स्वराज फंड कलेक्टेड ₹1 crore 15 lakh विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months. बॉयकॉट, पिकेटिंग, बॉनफायर ऑफ फॉरेन क्लोथ्स, ये सब कंटिन्यू पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया चल रहा था. In Malabar, in Kerala, non-cooperation and Khilafat propaganda helped to arouse the Muslim tenants also against their landlords. Muslim tenants भी अपने landlords के खिलाफ हो गए in Malabar, in Kerala. But here the movement at times took on a communal color. In Assam, labourers on tea plantation went on strike. The Prince of Wales landed. Prince of Wales आए मुंबई में इन नवंबर 1921 एंड द पीपल बॉयकॉटेड, और लोग उनसे मिलने भी नहीं गए. उस हड़ताल हुई पूरे मुंबई में. दिस प्रूव्स दैट पीपल वर नॉट हैप्पी विद द कमिंग ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स इन बॉम्बे. हड़ताल पूरे मुंबई में ही नहीं पूरी कंट्री में हुई. गांधी जी एड्रेस्ड अ मैमोथ मीटिंग इन द कंपाउंड ऑफ एल्फिनस्टोन मील. Unfortunately, clashes occurred and riots followed in which Parsis, Anglo-Indians and Christian became targets of attack. There was police firing. Police firing हो गई अचानक and 59 men were killed. Repression of the government. Government का क्या reaction था? Government adopted a policy of repression and many important Congress leaders except गांधी जी को छोड़ के बहुत सारे important leaders arrest हो गए. The government imposed prohibition on both. स्टॉप कर दी ये खिलाफत और कांग्रेस कमिटीज़ को गवर्नमेंट ने स्टॉप कर दिया. मीटिंग्स को बंद करवा दिया, बैन करवा दिया. न्यूज़पेपर्स बैंड हो गए, प्रोसेशंस बैंड हो गए. विड्रॉल ऑफ द मूवमेंट. चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से इस मूवमेंट का विड्रॉल होता है. चौरी चौरा इंसिडेंट ऑफ गोरखपुर ऑन 5 February 1922 इन यूपी लेड टू द सस्पेंशन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी. होता क्या है कि पुलिस ऑफिसर हैड बीन बीटेन सम वॉलंटियर्स पिकेटिंग अ लिकर शॉप. ठीक है, लिकर शॉप जो पिकेटिंग कर रहे थे, जो बॉयकॉट कर रहे थे, पुलिस ऑफिसर ने उनको मारा. एंग्री क्राउड ने लोकल पुलिस स्टेशन में आग लगा दी विद 22 पुलिसमैन इनसाइड इट. तो 22 पुलिसमैन उस पुलिस स्टेशन के अंदर थे. इस इंसिडेंट को सुनते ही गांधी जी ने तुरंत डिसाइड किया कि हम मूवमेंट को विड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि वायलेंस हो गया. As he was shocked, seen that the movement was becoming violent, क्योंकि अब मूवमेंट वायलेंट हो रहा है जो कि गांधी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे. He persuaded the Congress Working Committee to ratify his decision. Thus, on 12th February 1922, the non-cooperation movement came to an end. और तभी उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी को परसुएट किया कि हम अपना डिसीजन चेंज कर रहे हैं. ऑन 12th February 1922 को नॉन कोऑपरेशन एंड हो गया. गांधी जी का जो डिसीजन था टू विड्रॉ दिस मूवमेंट बिकॉज ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट रेज्ड अ कंट्रोवर्सी अमंग कांग्रेसमैन लाइक मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, CR दास, जवाहरलाल नेहरू कुड नॉट अंडरस्टैंड कि ये क्यों करें. बट वाई द होल कंट्री हैड टू पे. लेकिन पूरी कंट्री को क्यों इस क्रेजी बिहेवियर ऑफ सम पीपल, क्योंकि कुछ लोगों ने गलत किया, वायलेंट किया, पुलिस स्टेशन में फायर लगा दी, उसकी वजह से पूरी कंट्री क्यों उसका भुगतान करें. Next topic is importance of the movement. This is the last topic of this video. Demonstrated the support of the mass. इस मूवमेंट में ये पता चलता है कि बहुत सारे लोग ने सपोर्ट किया इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, चाहे वो पेशेंट्स हों, स्टूडेंट्स हों, वर्कर्स, लॉयर्स, विमेन, ऑपरेस्ट क्लास, शॉपकीपर्स, आर्टिशियंस. कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल. It instilled confidence among the masses.
People were prepared to bear repression. They were eager to sacrifice, were ready to defy the foreign rulers. The movement generated a desire for freedom. मतलब लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि वो इस रिप्रेशन को अब नहीं बेयर करेंगे, नो मोर. दे वर ईगर, वो क्यूरोस हो गए, वो क्यूरोसिटी उनके अंदर हो गई कि अब वो सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं फॉर द सेक ऑफ मदरलैंड, टू गेट फ्रीडम एट एनी कॉस्ट. दे वर रेडी टू डिफाई द फॉरेन रूलर. इस फॉरेन रूलर को, ये जो ब्रिटिश का रूल है, सिस्टम है, इसको हटाने के लिए वो हर कुछ करने के लिए लोग तैयार हो गए. इसी तरीके से कॉमन पीपल में कॉन्फिडेंस आ गया. द मूवमेंट जनरेटेड अ डिज़ायर फॉर फ्रीडम. और इस तरीके से मूवमेंट ने, इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने लोगों के अंदर फ्रीडम की डिज़ायर पैदा कर दी थी. नेक्स्ट है हिंदू मुस्लिम यूनिटी, द रिमार्केबल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मुस्लिम्स. येस, मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुए थे इस मूवमेंट में, जो एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, दैट इज़ हिंदू मुस्लिम यूनिटी. इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से, खिलाफत इशू से हिंदू मुस्लिम एक हो गए एक बार फिर. नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ सोशल रिफॉर्म्स. गांधी जी फॉट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी. ही ट्राई टू प्रमोट खादी, हैंड वोवन क्लॉथ को, उन्होंने क्लॉथ को बहुत प्रमोट किया है. ही एम्फसाइज्ड ऑन स्वदेशी प्रोडक्ट, ऑन यूसेज ऑफ स्वदेशी प्रोडक्ट्स. चरखास वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल. नेक्स्ट टॉपिक, अंडरमाइन द प्रेस्टीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो बहुत ज़्यादा ईगो था, वो सब चकनाचूर हो गया. पीपल वर नॉट हैप्पी एट ऑल विद द ब्रिटिश रूल. लोगों को समझ आ गया कि ये ब्रिटिश हमारे साथ क्या कर रहे हैं. देयर वॉज एन एंटी ब्रिटिश फीलिंग अमंग द मासेस. सबके अंदर ब्रिटिश के अगेंस्ट फीलिंग हो गई थी. द ब्रिटिश ऑफिसर्स नाउ फेल्ट वेरी नर्वस. अब ब्रिटिश ऑफिसर्स भी अपना दिन गिनती से गिन रहे थे. मतलब अब वो लोग भी नर्वस हो गए कि अरे अब तो पब्लिक उनके अगेंस्ट हो गई, अब क्या होगा. नेक्स्ट इज चेंजेस इन कांग्रेस कैरेक्टर. Yes, according to Subhash Chandra Bose, Gandhi ji transformed the Congress into a revolutionary party. According to historian R.C. Majumdar, Congress became an organized fighting force. कांग्रेस का काम करने का भी तरीका चेंज हो गया. अब वो लोग भी एक फाइटिंग स्पिरिट से काम कर रहे हैं. नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ स्वराज. स्वराज मीन्स अटेनमेंट ऑफ स्वराज ही चाहिए. कांग्रेस का भी यहाँ पे एम हो गया कि विद इन द ब्रिटिश एम्पायर एट एनी कॉस्ट स्वराज ही चाहिए, दैट इज कंप्लीट फ्रीडम. कांग्रेस रियलाइज्ड द वैल्यू ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फॉर अटेनिंग स्वराज. यहाँ पे कांग्रेस को रियलाइज हुआ कि बहुत अच्छे से सपोर्ट करना पड़ेगा स्वराज को अटेन करने के लिए. स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म. आपको पता ही है, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत अच्छा रहा तो नेशनलिज्म स्पिरिट भी लोगों के अंदर आई. कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा इंकरेज हुआ. ठीक है, और मेंबरशिप फीस भी रिड्यूस्ड हो गई, 4 आनाज हो गई पर ईयर, सो दैट पुअर पीपल कुड ऑल्सो बी अ मेंबर ऑफ दिस इंडियन नेशनल कांग्रेस. फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी. स्वराज पार्टी फॉर्म्ड हुई बाय मोतीलाल नेहरू एंड CR दास, who were better known as pro-changers. They wanted to enter the legislative council and from within planned to upset the evil policies of the British. तो ब्रिटिश की जो evil policies हैं उसको ख़त्म करने का उनका प्लान था और वो इस तरीके से चाहते थे कि legislative councils में उनकी एंट्री हो जाए. And that is why they formed Swaraj Party in March 1923. Now, in the next video, I'll discuss civil disobedience movement 1930. Thank you.